Assalamu alaikum students. Today our lecture is Python lecture number 6. We discuss dictionary in Python lecture number 6. Our topics are dictionaries, introduction of dictionary, a simple dictionary example, working with the dictionaries, how to access values in a dictionary, how to add new key value pairs starting with an empty dictionary, how to modify value in dictionary, how to remove key value pairs, a dictionary of similar objects, looping through a dictionary, looping through all key value pairs, looping through all the keys in a dictionary, looping through a dictionary's key in order, looping through all values in a dictionary, nesting, how to nesting, and we discussed 3 topics in next nesting according to the dictionary. Number 1 is a list of dictionaries, and second is a list in a dictionary, and in last a dictionary in a dictionary. Dictionaries. Python's dictionaries which allow you to connect pieces of related information. You will learn how to access the information once it's in a dictionary and how to modify that information. Because dictionaries can store an almost limitless amount of information. You will be able to create a dictionary representing a person and then store as much as information as you want about that person. You can store their name, age, location, profession, and any other aspect of a person you can describe. You will be able to store any 2 kinds of information that can be made up, such as list of words and their meanings, a list of people's names and their favorite numbers, a list of mountains and their elevations, and so forth. A simple dictionary. Consider a game featuring aliens that can have different colors and point values. This simple dictionary stores information about a particular alien. Now we write a quote about a simple dictionary example. Go to the Jupyter notebook. First we write a comment. हमने इसका नेम लिख देना है कि हमने किसका है, a simple dictionary example. अब एलियन का हमने एक कोड लिखना है, तो एलियन एक वेरिएबल है, उसमें जो है हमने डिक्शनरी बनानी है। उसमें पहला जो है कलर, और उसके बाद उसको हम कलर नेम दे देते हैं कि कौन सा कलर होगा, और उसके बाद है जी पॉइंट्स, अब कितनी पॉइंट्स हैं। तो स्ट्रिंग हमेशा जो है इन्वर्टेड कामास में होता है, और जो नंबर्स वगैरह जो हैं वो हम बगैर इन्वर्टेड कामास के लिखते हैं। उसके बाद हम इसको प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट एलियन 0। तो अब हमने क्या प्रिंट कराना है, फर्स्ट करें इसका कलर प्रिंट करवाते हैं, तो वो हमें उसका कलर बता देगा कि कौन सा कलर है। उसके बाद अगर हम दूसरी वैल्यू है प्रिंट एलियन 0, और इसको हमने पॉइंट्स बता दें, पॉइंट्स, ठीक है। और इसको अब हम रन करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। देखें ये पॉइंट्स की स्पेलिंग गलत है, इस वजह से उसने एरर दे दिया है। तो स्पेलिंग का ख्याल रखना है आपने, ये मैं पहले भी लेक्चर्स में बता चुका हूँ। तो ये देखें
कलर जो है डिक्शनरी में बताया गया है ग्रीन है, तो उसने ग्रीन दे दिया, और उसके बाद जो है पॉइंट्स हमने वो किए, तो उसके बाद उसने पॉइंट का बता दिया कि कितने पॉइंट्स हैं। अब हम फिर स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? वर्किंग विद डिक्शनरीज। A dictionary in Python is a collection of key value pairs. Each key is connected to a value and you can use a key to access the value associated with that key. हमने सिंपल एग्जांपल में देखा था कि जो की थी वो कलर था और उसकी जो वैल्यू थी वो ग्रीन थी, और जो पॉइंट्स था वो की था और उसकी वैल्यू जो थी 5 थी। A key's value can be a number, a string, a list or even another dictionary. तो उसमें जो है स्ट्रिंग, लिस्ट, नंबर, ये सारे जो है आपकी वैल्यू हो सकते हैं। इन पाइथन a dictionary is wrapped in a braces like curly brackets with a series of key value pairs include the braces as shown in the earlier example. तो ये मैंने इधर भी एग्जांपल शो कर दिया। alien underscore 0 एक वेरिएबल है और उसमें जो है ब्रेसेस के अंदर हमने की, कलर एंड पॉइंट, और उसकी वैल्यूज जो है, कलर की वैल्यू जो है ग्रीन है और पॉइंट्स की वैल्यू 5 है। A key value pair is a set of values associated with each other. When you provide a key, Python returns the value associated with that key. अगली स्लाइड पे चलते हैं जी। वर्किंग विद डिक्शनरीज में every key is connected its value by a colon, और हम उसको एग्जांपल में देखें, ये कोलन है, कलर एंड ग्रीन। एंड इंडिविजुअल की वैल्यू पेयर्स आर सेपरेटेड बाय कामास, और जो सेपरेट एक से ज़्यादा की वैल्यूज होंगे उनको हम कामा से सेपरेट करेंगे। जैसे हमने पहले एग्जांपल में कलर ग्रीन और कामा पॉइंट्स और उस कोलन 5 था। You can store many key value pair as you want in a dictionary. The simplest dictionary has exactly one key value pair, that is alien underscore 0 is equal to color colon green. The dictionary stores one piece of information about alien 0, namely the alien's color. The string color is a key in this dictionary and its associated value is green. तो कलर जो है वो this is the key and that's associated value is green. Accessing values in a dictionary. Give the name of the dictionary and then place the key inside a set of square brackets. Now we write a code according to this topic, accessing values in a dictionary. Go to Jupyter Notebook. अच्छा जी, अब हम इसके बारे में कोड लिखेंगे। पहले फिर से कमेंट डाल देते हैं। टॉपिक हेडिंग accessing values in a dictionary. Now write code how to access a value in dictionary. Alien 0 variable is equivalent to braces and color colon associate color value. Color value is the green. Print alien 0 और स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो है, जो हमने जिसका वैल्यू एक्सेस करना है वो कलर का है, और हम इसको अब रन करके देखेंगे, इसको ग्रीन देना चाहिए। ये ग्रीन आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसको हम जो है एग्जांपल रन कर देते हैं। ठीक है, इसको रन करवा देते हैं, फिर से ये ग्रीन आ जाएगा। और इसके बाद जो है हमने इसी कोई एक और एग्जांपल
बना लेते हैं और ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब हम इसमें एक और एग्जाम्पल रन करके देखते हैं। तो ओलियन 0 इज इक्वल टू डिक्शनरी डिफाइन करनी है जी। उसमें कलर कोलन green separated by commas and other key values are points कोलन की वैल्यू हमने डिफाइन करनी है। तो वैल्यू क्योंकि 5 है तो इसको हमें बगैर इन्वर्टेड कामाज लिखेंगे। ठीक है जी। तो उसके बाद ये न्यू पॉइंट्स इज इक्वलेंट टू एलियन 0 और उसकी जो है न्यू पॉइंट्स हमने डिफाइन करनी है। तो इसको हमने इन्वर्टेड कामाज में पॉइंट्स जो है वो डिफाइन करनी है। तो pulls the value associated with the key points from the dictionary. This value is then stored in the variable new points. ठीक है। तो इसमें अब हमने न्यू पॉइंट्स में ये वैल्यू स्टोर करनी है। तो प्रिंट की कमांड इसके बाद हम देते हैं प्रिंट इन्वर्टेड कामाज में स्ट्रिंग लिखना है जी। यू जस्ट earned और string new points less points। ये प्रिंट हो गया जी। इसमें हमने कन्वर्ट दिस इंटीजर वैल्यू टू अ स्ट्रिंग एंड पॉइंट्स अ स्टेटमेंट अबाउट हाउ मेनी पॉइंट्स द प्लेयर जस्ट अर्नड। तो ये स्ट्रिंग और वाला इंटीजर वाले फंक्शंस जो हैं मेथड मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ कि इसको किस तरीके से प्रिंट करवाते हैं। अब हम इसको कोड को रन करके देख लेते हैं जी। तो यू जस्ट अर्न 5 पॉइंट्स। आप देखें कि हमने एक न्यू पॉइंट्स का वेरिएबल बनाया है और उसमें जो है एलियन 0 की पॉइंट्स की जो वैल्यू है उधर हमने स्टोर करवा दी और उसको हमने कॉल कर लिया है प्रिंट में जैसे न्यू पॉइंट्स हैं। यू जस्ट अर्न प्लस स्ट्रिंग न्यू पॉइंट्स। तो जो न्यू पॉइंट्स में जो वैल्यू थी हमने उसको एज ए स्ट्रिंग यूज़ कर लिया है इसमें। अब चलते हैं जी स्लाइड की तरफ। Adding new key value pairs. Dictionaries are dynamic structures and you can add new key value pairs to a dictionary at any time. Let's add 2 new pieces of information to the alien 0 dictionary. The alien's x and y coordinates which will help us display the aliens in a particular position on the screen. So go to Jupyter Notebook. Write a code. तो सबसे पहले हमने इसकी हेडिंग कमेंट्स में डाल देनी है। वो है जी हेडिंग टू की वैल्यू पेयर्स। एलियन 0 equivalent to
color colon green comma points colon 5। उसके बाद ये एलियन, इसको भी प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट एलियन 0। उसके बाद एलियन 0 x position is equivalent to 0। तो इसमें जो है add a new key value pair to the dictionary, key x position and value is 0। now in second alien 0 डिक्शनरी है, इसमें जो है हमने y पोजीशन की भी वैल्यू दे देनी है एंड दैट इज 25। तो we do the same for key y position। now we write a print command, print alien 0। तो अब हमने देखना है कि पहले प्रिंट में जो है वो सिर्फ कलर और उसकी वैल्यू जो है ग्रीन एंड पॉइंट्स की वैल्यू 5 होगी, और उसके बाद जो हम प्रिंट करवाएंगे उसमें एक्स पोजीशन 0 की एक्स पोजीशन होगी और उसकी वैल्यू 0 होगी, और वाई पोजीशन की होगी और उसकी जो वैल्यू होगी वो 25 होगी। तो ये देख लें आपके पहला प्रिंट का, उसमें जो हमने डिक्शनरी एलियन की बनाई थी उसमें ये सिर्फ 2 कीज़ थी और 2 वैल्यूज़ थी। अब 2 से ज़्यादा जो है 4 कीज़ हैं और 4 वैल्यूज़ हैं। ये इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। अब हम स्लाइड की तरफ चलते हैं जी। स्टार्टिंग विथ एन एम्प्टी डिक्शनरी, एक एम्प्टी डिक्शनरी जैसे एम्प्टी लिस्ट थी, आपने लिस्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था, इसी तरह एक एम्प्टी डिक्शनरी भी है। इट्स समटाइम्स कन्वीनियंट और इवन नेसेसरी टू स्टार्ट विथ एन empty dictionary and then add each new item to it. To start filling an empty dictionary, define a dictionary with an empty set of braces and then add each key value pair on its own line. Typically, you will use empty dictionaries when storing user supplied data in a dictionary or when you write code that generates a large number of key value pairs automatically. तो अब इसको हम जो है किस तरीके से एक एम्प्टी की जो है डिक्शनरी को हम यूज़ करेंगे। अब एक एलियन 0 इज इक्वल टू एक हमने एम्प्टी डिक्शनरी ये बना दी, उसमें हमने एलियन 0 ये एम्प्टी डिक्शनरी है, इसमें हमने जो है की एंड वैल्यूज़ देनी है। तो जो कलर है वो हमने बता दिया कि भाई कलर का जो है कलर एक की है और उसकी वैल्यू जो है वो ग्रीन है। उसके बाद एलियन 0 और उसमें जो है पॉइंट्स जो हैं वो आगे नंबर है, और हम इसको प्रिंट एलियन 0 करवा देंगे। तो ये जो है आपकी ये जो एम्प्टी डिक्शनरी थी वो अब फिल हो जाएगी। तो ये जो है इस तरह अब आप देखें डिक्शनरी में ये वैल्यू ऐड हो गई है। अब दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं।
Modifying values in a dictionary. So how to modify? To modify value in a dictionary, give the name of the dictionary with the key in square brackets and then the new value you want associate with that key. तो अब हम चल के देखते हैं कि इसको कैसे जो है नया न्यू वैल्यू हम उसके सामने जो है ऐड करेंगे। तो इसकी भी हेडिंग डाल देते हैं, स्टार्टिंग with an empty dictionary। ठीक है, तो ये कमेंट है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एग्जीक्यूट करने में वैल्यू कोई चेंज नहीं हो सकती। तो एक और हेडिंग लगाते हैं मॉडिफाइंग वाली, मॉडिफाइंग वैल्यूज इन अ और इसमें एक एग्जाम्पल नंबर 1 है। अगर हमने हैश नहीं लगाएंगे तो ये कोड बन जाता है एग्जीक्यूट वाला, और हैश लग जाएगा तो ये हम उसको कमेंट तस्वर करेंगे और इसको जो कंपाइलर जो है वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो हम कोड लिखते हैं एलियन 0 इज इक्वलेंट और डिक्शनरी बना रहे हैं और इसमें हमने कलर कोलन ग्रीन और दूसरा कामा के साथ सेपरेट करेंगे और वो है पॉइंट्स और इसको वैल्यू देंगे, वो है 5 है। अच्छा, बल्कि इसको जो है हम जस्ट मॉडिफाई करना है ना, मॉडिफाई वैल्यू करनी है। तो अब हम प्रिंट द एलियन इज कॉन्केटिनेट के आपको पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि वो उसका क्या फंक्शन है। अब हमने एलियन 0 इसमें हमने कलर कॉन्केटिनेट साइन और स्टार, तो ये इसको जो है ना वो जस्ट प्रिंट कर देगा कलर एलियन कलर। अब जो है हमने वैल्यूज़ की कलर की चेंज कर देते हैं क्योंकि मॉडिफाई हमने करना है, तो हम इसको मॉडिफाई करेंगे, कलर जो ग्रीन है वो चेंज हो जाए। तो अब पहले प्रिंट कमांड में हमने जो कलर पहले ऊपर ग्रीन दिया हुआ है वो ही एज इट इज़ हमने प्रिंट करवाया है। अब हम इसमें कमांड में हमने जो ग्रीन है उसको हम येलो कर रहे हैं, तो ये जो कलर है अब वो येलो हो गया। अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, वो ही कमांड अगर ऊपर वाली में कॉपी कर लूँ, अच्छा यार टाइप कर लेते हैं ये अंडरस्कोर को इन्वर्टेड कमांड्स दी एलियन इज हाउ ये लो। अब ये डिक्शनरी की वैल्यू है जो हमने डिफाइन कर रहे हैं इसमें कि डिक्शनरी में जो कलर है उसकी वैल्यू जो है तुमने इधर प्रिंट करनी है। तो ये वेरिएबल्स डिक्शनरी है, तो इसी तरह हमने पहले भी लेक्चर्स में देखा था कि जो वैल्यू वेरिएबल में होती थी वो वेरिएबल हम लिख देते थे तो वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता था। अब हमने एलियन 0 है उसकी डिक्शनरी है, एलियन 0 की डिक्शनरी है, उसमें जो कलर है हमने उसको पहले प्रिंट में हमने उसको एज इट इज़ ग्रीन है, दूसरे में हमने कलर उसका चेंज करके येलो कर दिया है। तो अब हमने वही प्रिंट कमांड लिखी है जिसमें सिर्फ ये लिखा है कि अब जो है मॉडिफाई होकर कलर येलो हो गया है। तो अब इसको रन करके देखते हैं।
द एलियन इज ग्रीन। ठीक है, तो ये जो एलियन है ये आपकी डिक्शनरी है और उसमें डिक्शनरी में हमने कलर को ही क्या है, अगर पॉइंट्स करेंगे तो ये पॉइंट वाला आ जाए, लेकिन हमने एक ही डिक्शनरी में की वैल्यू है, एक से ज़्यादा नहीं है, और हम उस ग्रीन को अब हमने नाव में ये कर दिया कि वो येलो हो जाए। अच्छा जी, इसके बाद जो है दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसी का ही। वो क्या कहता है, एलियन 0 इक्विवेलेंट डिक्शनरी ब्रेसेस, उसमें जो है एक्स पोजीशन सॉरी कोलन बाहर आएगा इन्वर्टेड कामा से, और वो जो है वैल्यू है 0 है, और इसको हमने सेपरेट करना है, इसकी और वैल्यू को अब दूसरा देंगे, और वो है आपका वाई पोजीशन, और उसकी वैल्यू जो है सॉरी फिर से इन्वर्टेड कामास अंदर आ गया, ये बाहर इन्वर्टेड कामास के कोलन देना है, और उसके बाद उसकी वैल्यू जो है हमें 25 है, क्योंकि नंबर जो है वो इन्वर्टेड कामा ने स्ट्रिंग जो है इन्वर्टेड कामास बताया, और उसके बाद जो है एक और वैल्यू है जो उसको हम स्पीड कोलन और उसमें हम मीडियम वैल्यू ले ली, की जो है स्पीड है और उसकी वैल्यू है। अब हमने उसको प्रिंट करवा देते हैं, उसमें हमने लिखा ओरिजिनल एक्सपोजिशन कोलन कॉन्केटिनेट प्लस का साइन, और हमें इसको वही वैल्यू को स्ट्रिंग कन्वर्ट करना है, एलियन 0, और में कौन सा डिक्शनरी की है वो हम एक्सपोजिशन कर रहे हैं, सॉरी इन्वर्टेड कामास एक्सपोजिशन या आ गई, प्रिंट की आ गई। उसके बाद जो है हमने डिटरमाइन हाउ फार टू मूव द एलियन बेस्ड ऑन इट्स करंट स्पीड, तो ये हो गया। तो अब हम इसमें हम करें कि इफ एलियन 0 जो डिक्शनरी है उसमें हम बता रहे हैं कि जी स्पीड जो है वो अगर इज इक्वल टू स्लो है, अगर इफ ये इसके स्लो है तो उस पर हमने क्या करना है, तो इसमें क्या कह रहा है कि एन इफ एल्स चेन determines how far the alien should move to the right and stores this value in the variable x increment. If the alien speed is slow, it moves 1 until to the right. If the speed is medium, it moves 2 units to the right, and if it's fast, it moves 3 units to the right. अब हमने इसमें ये इंक्रीमेंट्स जो हैं वो बतानी है। x इंक्रीमेंट जो है वो अगर स्लो है होगी तो वो उसमें एक इंक्रीमेंट कर देगा। उसके बाद कोलन देना इसकी बात ज़रूरी है। उसके बाद ही एल्फ कोलन
एल्स के बाद अगर हमने एलियन 0 ईट इक्वल कंडीशन डाल रहे हैं एलियन स्पीड इज इक्वल टू, अगर मीडियम है तो उसको एक्स में जो है वो 2 कर दो, नहीं तो एक्स कोलन उसको एक्स अंडरस्कोर इंक्रीमेंट इज इक्वल 3 कर दो। और उसके बाद जो है एलियन 0 और जो उसकी एक्स पोजीशन है इज इक्वल टू एलियन 0 एक्स पोजीशन प्लस इंक्रीमेंट। तो इसमें कह रहा है कि वंस the increment has been calculated, it's add to the value of x position and the result is stored in the x position। तो x position की जो वैल्यू है उसमें इंक्रीमेंट अगर ऐड हो गई तो फिर दूसरे मतलब वो 2 भी होगी और 3 भी होगी, तो ये हमने वो ऐड करवानी थी। तो अब जो है उसके बाद जो है हम इसको प्रिंट कॉमास न्यू x position colon plus string एलियन अंडरस्कोर 0 और उसमें जो है एक्स पोजीशन करवाना है कि अगर उसकी स्लो होगी तो वो क्या करेगा और मीडियम होगी तो क्या जवाब आएगा। ओरिजिनल पोजीशन जो थी वो आपके सामने थी कि वो 0 थी और उसके बाद जो है न्यू पोजीशन जो आ गई वो उसको हमने 0 में एक्स पोजीशन एलियन एक्स पोजीशन प्लस एक्स इंक्रीमेंट कर दिया। तो एक्स इंक्रीमेंट जो है वो 1 है और उसको फिर जो है वो 2 है, तो ओरिजिनल जो न्यू एक्स पोजीशन वो आ गई वो 2 आ गई। तो इसमें इंक्रीमेंट हो गया, फिर एलियन 0 स्पीड अगर मीडियम है तो उसको इंक्रीमेंट 2 कर दिया और एल्स अगर है तो वो कर दिया। तो इस तरह जो है आपका ये उसको आप एल्स इफ के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। Removing key value pairs. When you no longer need a piece of information that's stored in a dictionary, you can use the del statement to completely remove a key value pair. All del needs is the name of the dictionary and the key that you want to remove. Go to Jupyter Notebook and write a code. अब आपने del की कमांड जो है वो यूज़ करनी है। अब हमने इधर हेडिंग देनी है रिमूविंग वैल्यू पेयर्स। एलियन 0 एक डिक्शनरी बनाएंगे
जिसमें जी कलर है कोई ग्रीन है, आप कोई भी रख लें। उसके बाद ये पॉइंट्स हैं कोलन 5, ये एक डिक्शनरी है और इसको हम प्रिंट भी दे दें ताकि हमें डिफरेंस पता चले जब हम डिलीट करें। अब जो है डेल एलियन ज़ीरो डिक्शनरी और उसमें से हमने क्या डिलीट करना है, पॉइंट्स को डिलीट करना है। टेल्स पाइथन टू डिलीट द की पॉइंट्स, की जो है वो इन्वर्टेड कॉमा पॉइंट्स फ्रॉम द डिक्शनरी एलियन ज़ीरो एंड टू रिमूव द वैल्यू associated with that key as well. The output shows that the key points and its value are 5 deleted from the dictionary. तो अब हम इसको ये पॉइंट भी की भी दे दी तो इसके साथ एसोसिएशन जिस भी वैल्यू की होगी वो भी डिलीट हो जाएगा। अब हमने पहले भी एलियन तो हमने प्रिंट करवाया था, वो वैल्यू आएगी और डिलीट कमांड के बाद जो वैल्यू है वो भी आएगी। अब हम इसको रन करवा के देखते हैं। ये देखें जी कलर ग्रीन पॉइंट्स और 5 था, वैल्यू कलर की ग्रीन वैल्यू थी और पॉइंट्स की 5। लेकिन दूसरी जब डिलीट कमांड हमने यूज़ करी तो उसके बाद जो है ये कलर और ग्रीन रह गया, बाकी वो ख़त्म हो गया। उसके बाद हम फिर स्लाइड की तरफ चलते हैं अगले टॉपिक पे, अ डिक्शनरी ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। You can also use a dictionary to store one kind of information about many objects. A dictionary is useful for storing the results of a simple poll like this. Favorite languages हैं और उसमें एक जेन है जिसको पाइथन पसंद का वैल्यू दी गई है, सारा को सी वैल्यू प्रोग्रामिंग है, एडवर्ड है उसको रूबी है और फिल है जो है उनको पाइथन है। तो टू यूज दिस डिक्शनरी गिविंग द नेम ऑफ अ पर्सन हु टुक द पोल, यू कैन ईजीली लुक अप देयर फेवरेट लैंग्वेज। तो अब आपने उसकी फेवरेट लैंग्वेज भी देख ली है और वो पोल है, तो इसको भी हम प्रोग्राम में जो है डाल के देखते हैं कि ये किस तरीके से जिससे जो ना रन करता है। तो सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं, डिक्शनरी ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। ठीक हो गया जी। सबसे पहले फेवरेट अंडरस्कोर लैंग्वेज इक्वलेंट, ये डिक्शनरी है और हम इसको डिक्शनरी को बताते हैं जी जेन है और इसको कॉलन है और इसकी वैल्यू जो है वो है पाइथन। सेपरेट किया हमने, उसके बाद जो है सारा कॉलन और इसकी कौन सी लैंग्वेज है जी, सी है। अब कौन है जी, एडवर्ड। एडवर्ड के बाद इसको कौन सी वैल्यू देनी है, कौन सी लैंग्वेज इसको पसंद है जी, रूबी। उसके बाद फेल है और उसको जो है भी पाइथन है। अब हम इसको प्रिंट summarize favorite favorite language is,
favorite language, dictionary, सारा का हमने नाम दे दिया डिक्शनरी में, और तो उसकी जो सारा की है वो पाइथन है, और आगे हमने टाइटल भी कर दिया और फुल स्टॉप भी हमने दे दिया। ठीक है जी, अब हम इसको रन करके देखते हैं। फेल कोलन पाइथन, आखिर में जो है डिक्शनरी ये काम नहीं आएगी क्या जी? अच्छा जी, इसमें क्या एरर आ रही है जी? तो हमने जो सेपरेट किया था उसकी कामा नहीं लगाई थी रूबी के बाद, तो इस वजह से जो है वो उसमें एरर आई थी। तो अब ये देखें, सारा फेवरेट लैंग्वेज इसी, क्योंकि हमने डिक्शनरी में सारा को सी ही लिखा है। और अगर मैं इधर एड वर्ड कर दूं और भी एड वर्ड्स कर दूं, तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो एडवर्ड्स फेवरेट लैंग्वेजेस रूबी, और डिक्शनरी में भी एडवर्ड के आगे जो है वो रूबी ही है। तो अब जो है हम फिर से अगले टॉपिक पे चलते हैं। Looping through a dictionary. A single Python dictionary can contain just a few key value pairs or millions of pairs. Because a dictionary can contain large amounts of data, Python lets you loop through a dictionary. Dictionaries can be used to store information in a variety of ways. Therefore, several different ways exist to loop through them. You can loop through all of a dictionary's key value pairs, through its keys, or through its values. Go to Jupyter Notebook and write a for write a code. अच्छा जी, अब ये इसकी थ्रू लूप जो है हमने हेडिंग लगानी है जी, लूपिंग थ्रू ऑल की वैल्यू पेयर्स। ठीक हो गया जी। फॉर एग्जांपल आप यूजर्स एक लिस्ट ले लेते हैं, यूजर 0 एंटर, तो अब उसमें यूजर नेम है और उसकी वैल्यू है जी ई फर्मी, फर्स्ट एंड लास्ट नेम। तो इसमें हम सॉरी इन्वर्टेड कॉमास फर्स्ट और कोलन, फर्स्ट नेम जो है एनराइको, एनरिको और आइको, what you want, and then last colon for me, comma, और इसके बाद जो है लूप आपने लगा लेना है फॉर की कामा वैल्यू इन यूजर और आइटम्स। ये आपको लूप में मैंने पढ़ाया था कि किस तरीके से लूप जो है देने हैं। तो इसमें जो है इंक्लूड्स द नेम ऑफ द डिक्शनरी फॉलोड बाय द मेथड आइटम्स
which returns a list of key value pairs। और अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट नोटेड commas एंड न्यू लाइन आ जाएगी। की है प्लस की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास वैल्यू कोलन और इसमें जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। तो इसको रन करके देख लेते हैं। फर्स्ट कोलन एनरिको, कामा नहीं दी मैंने, नहीं दी कामा, इधर भी कामा देनी है और इसके ऊपर भी कामा देनी है। सेपरेट करना है की एंड वैल्यूज को। ये देखें जी, की यूज़र नेम वैल्यू इफर्मी है, की फर्स्ट है और उसकी वैल्यू जो ये है, और की लास्ट है। ये तो हमने डिक्शनरी में 3 ही दिए थे, यूज़र नेम फर्स्ट लास्ट। तो की वैल्यू के बाद जो दूसरा की वैल्यू होगा उसके दरमियान कामा ज़रूर देनी है। तो कामा में भूल गया था इसलिए इधर आ गया था। इसके बाद जो है दूसरे एग्जाम्पल है, ये इसकी एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम इसको किसी की न कॉपी करके नीचे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 का कोड लिखते हैं कि वो किस तरीके से। अब भी ये फेवरेट लैंग्वेजेस पे आ गया वापस, और उसमें भी कोड जो है रन करके फॉर लूप के साथ देखते हैं कि किस तरीके से वो काम करता है। तो अब है फेवरेट लैंग्वेज इक्विवेलेंट डिक्शनरी आ गई जी। तो जो जेन है वैल्यू पाइथन और कामा, उसके बाद सारा और उसकी वैल्यू सी और उसको कामा, उसके बाद एडवर्ड कोलन और उसकी जो है वैल्यू है रूबी और फिर कामा, फिर जी फिल वैल्यू जो है वो नोटेड कामास पाइथन ही है और इसको भी हमने कामा। नीचे जो है हमने फॉर का फॉर नेम कामा लैंग्वेज स्पेलिंग का ख्याल रखना होता है। एंड नेम एंड लैंग्वेज दो हमने हैं, तो इन इसमें जी फेवरेट पेज is dot items नेम लैंग्वेजेस उसके हैं जो डिक्शनरी में है फेवरेट लैंग्वेज की वो है। और अच्छा ऊपर भी इधर भी एस लगा दे, लैंग्वेजेस हैं कर देते हैं और ये आ गया आपका आइटम्स आ गया। अगर नीचे जो है प्रिंट करने में आपको कंफ्यूजन न हो। अच्छा जी, इसमें कोलन लगाना है होता है, वो नहीं लगाया था हमने। अब हमने इसको प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट सॉरी स्ट्रिंग ही है, हमने इसको करवाते हैं नेम डॉट टाइटल
जो नाइम है उसको ले और उसके बाद एपोस्ट्रॉफी एस दे देते हैं ताकि नाम के साथ वो जैसे जेन्स साराज के साथ वो आ जाए। और उसमें हम फेवरेट लैंग्वेज इज लेस लैंग्वेज डॉट टाइटल। अच्छा जी, इसमें प्रिंट कैसे होगा? नेम टाइटल है, कोई भी है, जेन है तो हो जाएगा जेन्स फेवरेट लैंग्वेज इज पाइथन। तो फिर सारा पे जाएगा तो ये लूप चलेगा और हर एक की उठाएगा और साथ में उसकी वैल्यू भी उठाएगा। तो जितने नाम हैं उनके सब पे वो अलग अलग से प्रिंट करके दे देगा। अच्छा जी, इसने एरर दे दी है नेम और लैंग्वेज के बाद जो है, क्योंकि ये कह रहा है फॉर, तो ये जो लैंग्वेज के बाद जो है कामा आ गया है इसको हमने कामा को हटा देना है और इसको अब हम प्रिंट करते हैं। फिर भी जो है लैंग्वेज आइटम्स, तो इसको फेवरेट लैंग्वेजेस, वही हमेशा की तरह टाइपिंग मिस्टेक है, ऊपर जाएं, ये रही लैंग्वेजेस, ये रही लैंग्वेजेस। और जो है अब इसको हम रन करके देखते हैं जी, फिर भी एरर है। अब कहाँ पर है जी? लैंग्वेज इज नॉट डिफाइंड, फिर से लैंग्वेज इज नॉट डिफाइंड, स्पेलिंग मिस्टेक। ये एरर थी जी, लैंग्वेज स्पेलिंग स्पेलिंग स्पेलिंग, इसका ख्याल रखना है जी। तो आपके सामने दो तीन जगह जो है, एक कामा है लैंग्वेज के बाद मैंने दे दी थी, ये नहीं होनी चाहिए थी। इधर लैंग्वेज में स्पेलिंग गलत थी और इस जगह पे भी लैंग्वेज में स्पेलिंग गलत थी, तो जिसकी वजह से ये कोने आप देखें तो ये आपका डिक्शनरी है, आपकी डिक्शनरी है और फॉर लूप है और उसके नीचे जेन्स फेवरेट लैंग्वेज पाइथन, तो जेन की जो है पाइथन है, सारा की जो है सी है, तो सारा फेवरेट लैंग्वेज सी, एडवर्ड फेवरेट लैंग्वेज रूबी एंड फिल फेवरेट लैंग्वेज पाइथन। तो अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो हमेशा की तरह फिर मैं आपसे कहता हूँ स्पेलिंग का ख्याल रखें, स्पेलिंग से गलती हो सकती है। लूपिंग थ्रू ऑल की वैल्यू पेयर्स, लूपिंग थ्रू, तो ये हमने पहले ही यूज़र वाला जो है हम कर चुके हैं। अब है लूपिंग थ्रू ऑल द कीज इन अ डिक्शनरी। द कीज method is useful when you don't need to work with all of the values in a dictionary। तो ये जो की मेथड है वो हम अब यूज़ करके देखेंगे कि ये किस तरीके से जो है काम करता है। तो ये चलते हैं जुपिटर के, वहाँ पे हमने इसका कोड लिखना है। तो हेडिंग डालते हैं,
only looping through all the keys in a dictionary. इसमें भी एक से ज़्यादा एग्जाम्पल्स को हम टच करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 1 है, फिर इसमें वही फेवरेट, इसको नीचे करते हैं. फेवरेट languages is equivalent to in colon comma ara colon C comma inverted commas Edward colon inverted commas value Edward की would be and comma will साहब इसकी जो है वैल्यू है पाइथन कामा और अब लूप चलाना है फॉर नेम इन फेवरेट लैंग्वेजेस इन लैंग्वेजेस. अब इसमें हम कीज़ वाला वर्ड जो है हमने फंक्शन जो है कीज़ वो जिस स्लाइड में पढ़ा था वो करना है. वो क्या है जी? टेल्स पाइथन to pull all the keys from the dictionary favorite languages and store them one at a time in the variable name. ठीक है जी. और print name dot title ये कर देंगे तो होना है टाइटल का ब्रैकेट्स आएंगी. तो अब इसको हम फिर से रन करते हैं. चलो शुक्र है जी, टाइपिंग मिस्टेक नहीं हुई. ये सारे उसने जो है नेम्स जो है वो उठा लिए हैं और उसको बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो रहने दिए हैं. ठीक है. अब इसके एग्जाम्पल्स नंबर 2 देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2. अच्छा जी, फेवरेट लैंग्वेज सारी वही हैं तो हम उसको कॉपी ही कर लेते हैं फिर से. ये यहाँ से कॉपी कर लिया हमने. ठीक है जी, ये कॉपी कर ली. उसके बाद है जी हमने एक लिस्ट बनाई फ्रेंड्स इक्वल टू उसमें ये Sarah. So we make a list of friends that we want to print a message. Inside the loop we print each person's name. ठीक है जी, प्रिंट मैसेज और हर एक पर्सन के करेंगे. उसके बाद जो है फॉर लूप फॉर नेम इन फेवरेट languages
की जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम में एग्जाम्पल नंबर 1 में ये यूज़ किया था, और इसमें हमने प्रिंट नेम टाइटल हो गया और नेम इन फ्रेंड्स। अगर नाम फ्रेंड्स में है तो आप इसमें क्या चेक करेंगे, वी चेक सी वेदर द नेम वी आर वर्किंग विथ is in the list friends. If it is, we print a special greeting including a reference to their language choice. तो वो हम उसका ग्रीटिंग देंगे, किस तरह देंगे, प्रिंट, अब मैसेज करवाएंगे अगर नाम होगा तो कहेंगे जी हाय नेट नेम आई के साथ जो है नाम आ जाएगा, फिल है या सारा है, और उसके बाद जो है गेटिंग इट I see your favorite language is or plus languages, और इसमें जो नाम डाल देंगे और आगे टाइटल कर देंगे। ठीक है भाई, ये कोड थोड़ा स्क्रीन मैंने बड़ी की हुई है इसलिए ये बड़ा बड़ा आ रहा है, तो हम इसको रन करके देखते हैं तो ये आपको आएगा। तो देखें जी, प्रिंट हाई नेम, नेम टाइटल अगर इफ लिस्ट में फ्रेंड्स में है तो फिल हाई फिल आई सी योर फेवरेट लैंग्वेज इज़, कौन सी है जी फिल की साहब की लैंग्वेज, वो पाइथन है या रूबी है, जो भी है वो आ जाएगी, सारा की सी है तो वो आ जाए। अब हम इसको रन करके देखते हैं, अगर तो कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं की तो सही चलेगा। हो गई जी, कीज़ की नहीं है जी, कीज़ हैं, एक तो ये एस की टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये एस पर हमने इसको ठीक कर लिया। और क्या कह रहा है जी, फेवरेट लैंग्वेज ये एक ही कह रहा है। अब फिर से करके देखते हैं तो यही एक गलती थी। तो पहले जो है जेन, वो फ्रेंड्स लिस्ट में नाम नहीं है तो सिर्फ जेन लिख दिया, सारा क्योंकि फ्रेंड्स लिस्ट में मौजूद है तो उसके लिए ग्रीटिंग्स लिख दी, हाय सारा आई सी योर फेवरेट लैंग्वेज सी। एडवर्ड है वो फ्रेंड्स लिस्ट में नहीं है तो उसको भी सिर्फ नाम लिख दिया। फिल क्योंकि फेवरेट लिस्ट में है, फ्रेंड्स लिस्ट में है तो उसका लिख उसने ग्रीटिंग लिखी, हाय फिल आई सी योर फेवरेट लैंग्वेज इज पाइथन। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 3 भी हम एक और भी एग्जाम्पल कर लेते हैं लूपिंग का। अच्छा जी, वो भी सेम फेवरेट लैंग्वेजेस हैं तो हम वो कॉपी कर लेते हैं, फेवरेट लैंग्वेजेस टाइप से बच जाएंगे। काफ़ी मरतबा हमने लिख ली तो इसको एज इट इज़ हैं तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी हो गया। और अब जो है इसके बाद हम लिख रहे हैं इफ़ एरिन नॉट इन फेवरेट, नॉट फंक्शन हम यूज़ करें कि फेवरेट लैंग्वेजेस में अगर नहीं है
तो उसको क्या प्रिंट करना चाहिए, प्रिंट, अगर ये इस लिस्ट डिक्शनरी में नहीं है तो वो क्या होगा, हेरोइन इज एक वर कोड। तो ये बाकी लोगों ने इस पोल में शामिल हुए थे और उन्होंने अपनी लैंग्वेजेस बता दी थी। तो एरन क्योंकि इस पोल में हिस्सा नहीं लिया था तो इसलिए उसे कहा गया। तो अगर नॉट के साथ भी जो है इफ हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसको रन करवा के देखते हैं। तो उसको डिक्शनरी में क्योंकि इसका नाम नहीं है तो एरन प्लीज टेक अवर पोल, वो जो है हमारा पोल ले लें। अब हम एक और अगली स्लाइड पे चलते हैं और अगले टॉपिक को देखते हैं। लूपिंग थ्रू अ डिक्शनरीज कीज इन ऑर्डर। ऑर्डर को देखना है। डिक्शनरी ऑलवेज मेंटेन्स अ क्लियर कनेक्शन बिटवीन ईच की एंड इट्स एसोसिएटेड वैल्यू, but you never get the items from a dictionary in any predictable order. One way to return items in a certain order is to sort the keys as they are returned in the for loop. You can use the sorted function to get a copy of the keys in order. Go to Jupyter Notebook and write a code about this topic. तो सबसे पहले हम इसकी हेडिंग लगा लेते हैं जी, लूपिंग थ्रू dictionary key in order। उसी को कॉपी कर लेते हैं, लैंग्वेजेस को आ जाते हैं। ये लैंग्वेजेस हैं, हमने पहले कॉपी की हुई हैं। अब हमने आर नेम इन सॉर्टेड वर्ड लैंग्वेजेस कीज, ठीक है जी। ये सॉर्टेड लैंग्वेज फॉर नेम सॉर्टेड फेवरेट लैंग्वेजेस ठीक हो गया। और इसको कॉलन देके अब हम प्रिंट करवाएंगे। क्या प्रिंट करेगा, नेम टाइटल कॉन्केटिनेट फंक्शन भी, और उसके बाद इन्वर्टेड कामास में हमने स्ट्रिंग लिखना है। थैंक यू फॉर टेकिंग फुल स्टॉप, ठीक है जी। डिक्शनरी ऑर्डर है, अब सॉर्टेड करेगा। कैसे सॉर्टेड करेगा, ये सॉर्टेड के फंक्शन आपने लिस्ट में देखे थे। इसको रन कर दें, देखें जी। डिक्शनरी में पहला जो की वैल्यू थी जेन थी, सारा है एडवर्ड फिल पे। तो सॉर्टेड जो है हमेशा अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में होता है। तो ई से जो है एडवर्ड नाम है, ए बी सी से कोई भी नहीं है। ई के बाद जे आता है, फिर जे के बाद पी आता है, फिर सारा आता है। तो इसने सॉर्टेड डिक्शनरी की वैल्यूज़ को कर लिया और उसी के हिसाब से ही कीज़ नेम जो है उसने हमने फॉर लूप में चलाया। नेम इन सॉर्टेड आर्डर करो जी, सॉर्टेड करो और किस में करो, फॉरवर्ड लैंग्वेज में। और उसके बाद जो है ना हमने उसको प्रिंट करवा दिया। तो ये सॉर्टेड अल्फ़ाबेटिकल आर्डर। और उसमें प्रीवियस एग्जांपल जो था वो हमने बगैर सॉर्टेड आर्डर के किया था। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब है लूपिंग थ्रू ऑल वैल्यूज इन अ डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में ऑल वैल्यूज की लूप है। इफ यू आर प्राइमली इंटरेस्टेड in the values that a dictionary contains, you can use the values method to return a list of values without any keys। अब values जो हैं without any keys के return होनी चाहिए।
अच्छा जी, इसको हेडिंग दे देते हैं जी, लूपिंग थ्रू ऑल वैल्यूज इन अ डिक्शनरी। एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छा जी, वही हमें लैंग्वेजेस चाहिए, वो हमने कॉपी की हुई है और अब हम टॉपिक के मुताबिक जो है हमें कोड लिखना है। तो प्रिंट फॉलोइंग languages have been mentioned। ये प्रिंट कमांड आ जाएगी। उसके बाद फॉर लैंग्वेज इन फेवरेट लैंग्वेजेस, अब कीज की जगह जो है वैल्यूज आ गई हैं। वैल्यूज को रिटर्न वैल्यू करना है उसने, पहले की करता था और अब जो है उनकी की जो वैल्यूज हैं उसको रिटर्न करेगा। तो प्रिंट लैंग्वेज डॉट टाइटल, पहले नाम था, नेम प्रिंट करता था की का, अब जो है वैल्यू है वो लैंग्वेजेस हैं, पाइथन, सी, रूबी, पाइथन जैसे हैं। तो अब जो है क्योंकि हमने कीज़ की जगह वैल्यूज़ को रिटर्न करवाना है, तो इसलिए जो है हमने लैंग्वेज इन फेवरेट में लिखा है। तो अब देखेंगे नाम, जेन, फिल, सारा और ये एडवर्ड वगैरह नहीं आएंगे और उनकी जो लैंग्वेजेस हैं पाइथन, सी, रूबी एंड पाइथन जो है वो आएंगे। ये जी टाइटल में लैंग्वेज के स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, टाइपिंग। अच्छा जी, द फॉलोइंग लैंग्वेज हैव बीन मेंशन बिल्ट इन मेथड टाइटल ऑफ स्ट्रिंग। लैंग्वेज डॉट टाइटल, हाँ भैया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये जो गलती हुई है कि उसने जो है मेथड टाइटल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पता नहीं क्या कुछ दे दिया, सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट्स न लगाने की वजह से नाराज़ हो गया हूँ। मैं अजीब व गरीब ज़बान बोलने लगा, मशीन लैंग्वेज। तो अब देखें जी, पाइथन, सी, रूबी, पाइथन ये आपकी आ गई। तो कोड लिखते हुए जो भी थोड़ी गलती करेंगे आपका पूरा कोड गलत हो जाता है। तो इम्तिहान के हिसाब से, अगर एग्ज़ाम के हिसाब से अगर हैंड रिटन कर रहे हैं तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती से पूरा कोड आपका रन नहीं होगा। और वैसे अगर कोई प्रोग्रामिंग वगैरह कर रहे हैं और उसमें भी एग्जीक्यूट कंपाइल करेंगे तो एरर आ जाएगी, तो ठीक हो सकती है। लेकिन एग्ज़ाम में जो आपने आंसर शीट जमा करा दी, सो के करा दी, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो इसलिए बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान से जो है आपने कोड लिखना है। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 2 करना है। हैश लूपिंग थ्रू ऑल values in a dictionary। Example नंबर 2, फेवरेट लैंग्वेजेस उसी को ले लेते हैं। अब हमने
वही है प्रिंट the following languages have been mentioned, प्रिंट हो जाएगा। फॉर वाला लूप चलवाएंगे, लैंग्वेज इन it favorite languages dot values। इसमें जो है सेट को हम यूज कर रहे हैं, we use set function to pull out the unique languages in favorite languages values। तो जो यूनिक होंगी हम उनको पुल आउट करेंगे, उनको प्रिंट आउट करेंगे। अब यूनिक से मतलब इधर दो पाइथन है, वो यूनिक नहीं है, एक जैसी हैं, तो उसको हम पुल करेंगे। तो सेट जो है उस वजह से यूज करेंगे, जो यूनिक लैंग्वेज वैल्यूज हैं उन्हें हम प्रिंट करवाएं। नाउ रन दिस कोड। ये देखें जी, रूबी सी पाइथन आ गई और